अगली वाली किताब है जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर जो वाइटाले। और जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है एविडेंसेस। एविडेंस का मतलब सबूत। सबूत किसके? जो दो कॉन्फ्रेंस अभी पीछे हुई थी। एक डॉक्टर जो वाइटाले ने ली थी मैनिफेस्टेशन वीकेंड के नाम से, उसके बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है। वो अपने बारे में ज्यादा नहीं बता रहे हैं, वो अपने मेंटोर जो उनके जहां से उनको सीखने को मिल रहा था वो उनके बारे में ज्यादा इस किताब में बात कर रहे हैं। तो वो उस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो एलए में हुई थी। उसके बाद जो यहाँ पर ऑस्टिन में सारे लोग आए थे, मेजरली ये वहां के एक्सपीरियंसेस हैं। जो डॉक्टर जो वाइटाले की सिटी में आए थे सब लोग, और उन्होंने हायत होटल में डिनर किया था, साथ में इनफॉर्मल चैट था और लर्निंग्स थी उसके। और सुजैन जो उनकी सेक्रेटरी हैं डॉक्टर जो वाइटाले की, उन्होंने सारे अटेंडीज को कहा था कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिख के दो ताकि हम उसको कर पाए। तो ये वो प्रिंटेड एक्सपीरियंसेस हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने एक एक्सपीरियंस पढ़ा था एक लॉयर का, और किस तरह से उसको एक डिनर ऑर्गेनाइज करना था वीगनिज्म का, और उसने कितनी आराम से कर लिया। और पहली बार अटेंडेंस जो हमेशा 20 की होती है, 20 भी एग्जैजरेटेड फिगर था, 20 की जगह 75 पीपल, और 72 सॉरी, टर्न अप। एंड इट वाज सच अ सुपर सक्सेस इवेंट। उसके बाद आज वाला एक्सपीरियंस, एंड अंजू सरदाना विल बी रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. करनाल, आई गेस करनाल, नो अंजू? Yeah, या, ma'am. हाँ जी, ओवर टू यू। रेंटल कार मिरेकल। Rental car miracles. I rented a car to go to Austin because I did not want to put the extra wear and tear on mine. I compared rates and figured out that I had to just as well to rent a car for a week as just renting from from Wednesday to Monday. I got a good price online to rent a mid-size car, which I thought would be more comfortable than a compact. When I got to the rental agency, I found that there were very few vehicles on the lot. I did happen to notice that they had two orange Clevy HHRs, which have a cool street road look. When I went to the counter, I was told that they did not have any mid-size cars to rent me. I asked if I could have an HHR and they said that I could, even though they were classified as full size for some reason. I thought it would be cool to rent an orange hot rod to drive to Austin, since orange is one of the school colors for the University of Texas, my mater. However, when I drove it off the lot and to my office, I realized that while the car was neat looking on the outside, it was cramped inside with the bad sightlines. I wanted to return it. However, I needed the car to get to my office and to run some errands. I could not get it returned during the day. I contacted the agency about swapping the car for a more conventional sedan, but they said that they still did not have what I wanted on the lot, and I had have better luck in the morning. I packed overnight, and in the morning when I went out to the HHR to throw in my suitcase, I discovered to my horror that the car had a noticeable door ding on the rear passenger door. Of course, I always declined the extra insurance, and I did not remember seeing the dent the day before. So I thought I was screwed. I thought that I had go ahead and hang onto the car for a week and see if I could figure something out. I left out I left much later than I wanted to, around 12:30 p.m. on a Thursday, and got into the Austin around 6:30. Fast forward to Saturday evening at 5 p.m., an hour before I wanted to get to the hot for the event with the Joe and Dr. Hewlin. I had spent too much time worrying about the dent and what I was going to do. I was at the shopping center in the North Austin trying to find a disposable digital camera with no luck. When I got back into my car to drive back to my hotel, it was getting dark and there was a steady rain. I stopped at a place preparing to merge onto a busy street when I felt a sudden smack.
I had been rear-ended. Immediately I was thinking, oh shit. First the door ding, then this. I have a dinner in an hour that I have already paid for, and I need time to shower and change. On top of everything, was a high traffic area, even on a Saturday evening. I got out of the HHR after first grabbing the rental registration information. A young black man met me in the street. My tires, he said. I have got to get new tires for my car. I could not get it stopped. Not a good thing to tell a lawyer, I thought. I said, crap, this is a rental car. We walked to the back of the HHR to survey the damage. We both looked and were stunned. There is no damage, the fellow said. There is no damage. Praise Jesus. Being Jewish, I thought that was amusing, but I looked myself and could not believe it. Incredibly, he was right. There was no damage. This car was apparently made with collapsible plastic. I knew that I was going to be sold, but I did not want to stick around and make a big deal of this. I wanted to get back to my hotel. We shook hands and went our separate ways. I was able to make the dinner and sit at Joe and Nerissa's table. या I मैं did the इतना समझा देती हूँ एक बार जिन लोगों को बहुत इंग्लिश में वो नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसके हिंदी वर्जन नहीं है इस किताब का, नहीं, बट मैं हिंदी में समझा देती हूँ सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट बेटर। तो ये जो अभी तक जितना अंजू ने पढ़ा है उसमें ये एक्सपीरियंस है उस फीमेल का जो डॉक्टर जो और डॉक्टर ह्यूलन के साथ डिनर अटेंड करने हायट होटल में आई थी। और उनको उनको उन्होंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाती हूँ तो बहुत वेयर एंड टेयर हो जाएगा, इससे अच्छा मैं किराए पे एक कार ले लेती हूँ। तो कार रेंटल वैसे भी वहां पे बहुत पॉपुलर है ना, इंडिया में अभी हो रहे हैं बट ऑफ कोर्स बैक इन यूएस बहुत पॉपुलर है। तो उसने कार रेंट की और उसने कहा दैट शी वांटेड अ नाइस ऑरेंज हैवी कार एचएचआर बड़ी ये वो, ताकि अंदर बहुत ज्यादा स्पेस हो, और उसको लग रहा था कि नहीं इट विल बी रियली नाइस टू ड्राइव दिस बिग कार। बट उसने जब गाड़ी ले ली, और उसने पूरे हफ्ते के लिए ली थी बिकॉज वो एक्चुअली वेडनेसडे को उसने गाड़ी ली थी, और सैटरडे संडे का इवेंट था ऑस्टिन में। तो मंडे वो भी ड्राइव बैक करके वापस अपनी सिटी जाती, कुछ 6 घंटे का डिस्टेंस था उनका ऑस्टिन में, और जहां पे भी जिस भी शहर में वो रहती थी। तो 6 आवर ड्राइव था उनका। तो उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते का मतलब मिनिमम एक हफ्ते का ही पैकेज था कार रेंटल का, तो उन्होंने पूरे हफ्ते के लिए कार रेंट कर ली थी। वेडनेसडे को की थी, थर्सडे मॉर्निंग उनको निकलना था ऑस्टिन के लिए। तो जब उन्होंने गाड़ी ली अंदर बैठ गई तो उन्होंने देखा कि गाड़ी जितनी स्पेशियस बाहर से लग रही थी और जिस वजह से उन्होंने ली थी अंदर से वो बहुत क्रैम्प थी। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कार वाले को फोन किया कि मुझे दूसरी गाड़ी आप दे सकते हो बिकॉज ये अंदर से बहुत क्रैम्प लग रही है। तो वो दूसरे ने कहा कि नहीं इस वक्त हमारे पास कोई कार अवेलेबल नहीं है। तो वो लेके उसको ऑफिस चली गई। शाम को जब वो वापस गई तो फिर उन्होंने फिर कोशिश की कि गाड़ी रिप्लेस हो जाए। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग उनको 12:30 के आसपास निकलना था, और फिर वो ऑफ कोर्स ड्राइव करके ऑस्टिन आ गई। शाम को 6:30 बजे पहुंची, किसी मॉल गई, उनको वहां पे एक डिस्पोजेबल कैमरा खरीदना था। उन्होंने सोचा कि आज रात को डिनर है तो हम एक कैमरा ले लेते हैं। कैमरा ले रही थी लेकिन जो भी था उनको वो अप्रोप्रिएट सा मिला नहीं। उसके बाद एकदम से उनको लगा कि वो ट्रैफिक में ड्राइव कर रही थी और पीछे से किसी ने आके बैंग कर दिया उनकी गाड़ी। उनको बड़ा वो हो रहा था कि ये क्या हो गया, दिस एंड दैट। सो एनी हाउ वो वहां पे किसी मैकेनिक टाइप के वहां पे उन्होंने पार्क किया, पुल किया, और वो पर्सन को कहती है, तो उस पर्सन ने पूछा उनसे आपको टायर वायर चाहिए, कहती है कि नहीं मेरे इसमें बैंग हो गया है तो पीछे देखना है। उसमें कोई डेंट नहीं था, और वो जो प्लास्टिक होता है ना कोलैप्सिबल की, उसको धक्का दो तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाता है, उस मटेरियल की वाली कार बनी हुई थी। तो यहाँ तक उसमें फिर उसके बाद फाइनली वो तैयार वैयार होके होटल गई जिस होटल में उनको रुकना था। तैयार होके फाइनली जो और नेरिसा नेरिसा डॉक्टर जो वाइटाले की बेटर हाफ है, उनकी वाइफ, राइट। तो उनकी डॉक्टर जो और नेरिसा की टेबल पे वो जाके बैठी। अभी तक हमने इतना किया है, मतलब उस डिनर के लिए जिसमें डॉक्टर ह्यूलन इनवाइटेड थे। आगे पढ़ते हैं। हाँ जी। I did some serious ing about what to do about the door ding. I put off doing anything else about it until a couple of hours before I was supposed to return the car without penalty. I looked in the
phone book and found a place that did paintless dent repair. The guy at the shop gave me an estimate of $95, but I could not. But it would take him a few hours to complete the repair. That would put me into a rental penalty, which I really did not want to happen. I asked what to do, and the answer came clearly: be honest. Call the local office of the rental agency and fess up. If they wanted to jam me on the repair, I at least had an estimate. I did call, and the guy on the phone told me not to have the car worked on, but to bring it by so they could check their records and survey the dent themselves. I said fine. I took the car back and left it parked in the return lane. The customer service lady started scanning the barcode and taking readings on the HHR. I told her what was going on, and she sent me to the office slash trailer. I found the guy whom I talked to on the phone, and he punched the car's identification number in on his computer. Miracle too. The damage was already noted on their records. I was not responsible. Hallelujah. I was home free. My sister was offered her dream या job. वन सेकेंड सो ये वाला एक्सपीरियंस का ये था कि वो पूरे टाइम इस टेंशन में थी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कि मुझे बहुत पैसा देना पड़ेगा डेंट का, क्योंकि मैंने ये किराए पे गाड़ी ली है। तो इधर बात करना, उधर बात करना, जो भी है, फाइनली जब वो गई वापस ये गाड़ी लौटाने के लिए जिसपे इतना बड़ा सा डेंट लगा हुआ था, तो उनको पता था कि फिर, क्योंकि उन्होंने ना गाड़ी देने के पहले एक्चुअली डेंट वाले की दुकान पे गई, उन्होंने उसमें जो रिपेयर मैकेनिक था उसको कहा, तो उसने कहा कि इसमें $95 लगेंगे, विच इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, लाइक टुडे। सो उन्होंने कहा कि एनी हाउ उन्होंने कराया नहीं। फिर उन्होंने उस पर्सन से बात की और उनको बार बार अपने अंदर से वो आ रहा था, बी ऑनेस्ट, तो उन्होंने बहुत ऑनेस्टली फोन करके उस पर्सन को कम्युनिकेट किया कि ऐसा है कि मुझसे गाड़ी ठुक गई है, एंड ऐसा ऐसा है, एंड देर इज अ बिग डेंट ऑन द डोर एंड आई डोंट नो दैट, मतलब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप गाड़ी को जैसे है वैसे ही ले आओ, हम लोग सर्वे करके देख लेंगे इसका क्या करना है, आप इसको रिपेयर मत कराओ कहीं बाहर से, और हमको कराना होगा हम ही करा लेंगे। तो उन्होंने सोचा अब, लेकिन द पंच लाइन हियर इज दैट, उनको जब ये बहुत ज्यादा वरी हो रही थी ना कि मेरी गाड़ी में इधर डेंट है और ये पड़ गया है और वो हो गया है और पीछे से भी किसी ने पुश कर दिया है, तो उन्होंने बहुत सीरियस होपोनोपोनोइंग किया था। दैट इज व्हाट शी सेड आई डिड वेरी सीरियस होपोनोपोनोइंग, बिकॉज ऑब्वियसली वो उसी सेमिनार में गई थी जहां पे उन्होंने इसके बारे में सुना था, पढ़ा था। तो ये वो वाला काम का, तो वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करके आई थी। उसके बाद जब वो गई तो उन्होंने, उस पर्सन ने उनको बोला कि आप आके कार रेंटल ऑफिस में अपनी गाड़ी जमा कर दो, कोई बात नहीं, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो जब वो वहां पे गई और उन्होंने ऑनेस्टली बताया कि देखो यहाँ डेंट है, वहां डेंट है, ये गड़बड़ हो गई मुझसे, जो भी हो गई, उन्होंने बहुत अच्छे सर्वे किया और उनके रिकॉर्ड में वो प्री डेंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। शी वॉज सो अमेज्ड, और उनको एक पैसा भी नहीं खर्च हुआ उसके कारण, मतलब वो ऑलरेडी था कि गाड़ी में पहले से ही वो थे, स्क्रैचेस थे, वो वाले डेंट्स थे, वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने जब आपको गाड़ी दी थी तभी हमने ये वाली दी थी, तो ये ऑलरेडी, सो शी वॉज फाइनली, इसमें लिखा हुआ है ना, आई वॉज होम फ्री। सो दिस वॉज हर एक्सपीरियंस नंबर। एंड देन एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ ये कितना, हाँ, हाँ, एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, पढ़ो। My sister was offered her dream job. My sister called 1 week after the evening with Joe and Dr. Hewlin. She is a vice president for a division of a very large, well-known company. She was contacted by a headhunter to find out if she would be interested in what she described as her dream job. She did not want to tell me the details on the phone. Instead, she emailed me the job description she received from the recruiting agency. I was knocked over. Let's just say that the company is a luxury brand, and all I have to do is tell you one word, the company name, and that would say it all. A few months later, she was hired. Yeah.
सो दिस इज द सेकेंड एक्सपीरियंस जो उनकी सिस्टर के साथ हुआ था। उनकी सिस्टर ने भी अटेंड की थी ये वाली वर्कशॉप और उन्होंने खूब अच्छे से होपोनोपोनो करके क्लीनिंग किया था। और उनकी कुछ टाइम से जॉब नहीं थी, बट उनका बहुत बड़े लग्जरी ब्रांड में जॉब लगा। और एक हेड हंटर ने, मतलब जैसे Naukri.com होती है, वैसे जो बड़े बड़े जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, तो वो हेड हंटर्स होते हैं। सो दे फाइंड आउट अबाउट यू एंड दे रिक्रूट यू फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, और सारा नेगोशिएशन वगैरह वही लोग करते हैं। तो उनकी सिस्टर की एक बहुत हाई प्रोफाइल पे एक बहुत बड़े लग्जरी ब्रांड में जॉब लगी। एंड दिस इज वॉट, तो हर सिस्टर ऑल्सो कॉल्ड अप, जिनकी ये गाड़ी थी, उनकी जिन्होंने गाड़ी हायर की थी ना, उनकी बहन की बात है। उनकी सिस्टर ने उनको कहा कि मेरी बहुत अच्छी लग्जरी ब्रांड में जॉब लगी एंड सो मच लाइक I'm so happy and this is my dream job, right? So this is what the sister said। और वो जब ये लेटर लिख के सुजैन को भेज रही थी, डॉक्टर जो की जो सेक्रेटरी है, तब तक उसकी सिस्टर ने ये नहीं बताया था कि कौन सा वाले लग्जरी ब्रांड में उसकी जॉब लगी। उसने कहा फोन पे अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ कि आई हैव गॉट अ जॉब ऑफर एंड आई हैव गॉट दैट जॉब। एंड अ फ्यू मंथ्स लेटर शी वाज हायर्ड। फ्यू मंथ्स लेटर, क्योंकि जहाँ पे आप आज काम कर रहे होते हो वहां पे आपको नोटिस भी देना पड़ता है, राइट? तभी जाके आप दूसरी जगह, सो नोटिस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस जॉब से आप किस तरह से निकल रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आगे आपका कितना स्ट्रगल होगा। अगर आज जो आपकी कंपनी है, अगर आप बिना हायर, बिना नोटिस दिए, बिना किसी को रिक्रूट किए, या ऐसे ही एकदम से आप छोड़ के जब दूसरी जगह जाते हो, तो आपने अपना जॉब कर्मा खराब कर दिया, चाहे आप कितना भी प्रे करो उनके लिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर जॉब ए से जब जॉब जी बी में जा रहे होते हो, तो बहुत ऑनेस्टली, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके आपको जॉब बी में जाना होता है, राइट? सो ये इसलिए थोड़े महीने लगे, और फाइनली इसकी सिस्टर ने, इन पर्सन की सिस्टर ने वहां पे एक न्यू कंपनी में जॉब किया, जो उनकी ड्रीम जॉब थी अपेरेंटली, जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो ये दो बहुत बहुत पावरफुल एक्सपीरियंसेस हैं जो डॉक्टर ह्यूलन के साथ मिलने पे, सेमिनार अटेंड करने के बाद इन लोगों की लाइफ में हुए। अब नेक्स्ट एक्सपीरियंस हम कल पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच अंजू फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, and God bless you with your perfect health.